at the School of Legal Studies, Professor Farooq Ahmed Mir. Worthy and revered Singh, distinguished faculty member examination, which is a very prestigious, reputed and distinguished examinations at the national level, who shall be speaking about how to make preparations for the same and if there would be any hurdle, how to face that hurdle. So with this brief introduction, I would call upon Dean at the School of Legal Studies and Control of Examinations at Central University of Kashmir to make a formal introduction about the case. Following him from last 3 months, requesting him repeatedly, please come and interact with our students. We are all thankful to him that finally he has found time for us. And my brief interaction with him in our last function, Control of Examinations, UK and Head and Dean at the School of Legal Studies, Professor Farooq Ahmed Mir. Worthy and revered IAS Singh, distinguished faculty members from the examination, which is a very prestigious, reputed and distinguished examinations at the national level, who shall be speaking about how to make preparations for the same and if there would be any hurdle, how to face that hurdle. So with this brief introduction, I would call upon Mr. Bilal Ahmed Ganai to... Okay, I would request Dean at the School of Legal Studies and Control of Examinations at Central University of Kashmir to make a formal introduction about the case. Following him from last 3 months, requesting him repeatedly, please come and interact with our students. We are all thankful to him that finally he has found time for us. And my brief interaction with him in our last function, I found Mr. Shayambir a very positive, energetic and very dynamic officer who believes in not pure administration, but administration with human heart, administration for public, administration which should be people-centric, where public participation is ensured. I am really happy to see him here interacting with our students. My dear students, you know that it takes very hard time, energy and great will to qualify IAS. It is not everybody's cup of tea, but of course where there is a will, there is a way. And I have been frequently requesting my students that you prepare first your mind for this great job. And then you can have time also. And today is a very good, in fact, fortune for all of us that with us we have a person who has already qualified this civil service examination after completing engineering, that too from the prestigious IIT New Delhi institution. So that would itself speak about his consistent performance, his brilliance and his will to achieve something great. I am sure we will be having a good number of Shayambirs sitting here, provided you also concentrate, you focus, you consistently work hard. And it may not be perhaps for me to do justice when I say that okay, you qualify this test. Perhaps the better person for it would be the one who has already qualified, the one who has already made a mark for it. So he is today none other than our own Deputy Commissioner of Ganderbal, Mr. Shayambir. So I welcome him, I welcome my students also, and thank my colleagues who have made this arrangement. Because of the paucity of time, as I said, it is quite possible that in between Deputy Commissioner might have to leave because the nature of job is such. So I don't want to stand between you and him. He will be straightway coming and addressing with you, and at the end, if you have any question, feel free, ask him questions. If time permits, he will answer those questions as well. So I welcome you, sir, again. Thank you very much. सभी लोग हिंदी समझन हैं। मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन गांधरबल के साथ में मिलकर हम लोगों ने जो एक मेरी पार्टी मेरा देश अभियान चल रहा है, उस अभियान के तहत हमारी एक थीम है नो योर डिस्ट्रिक्ट, जिसके तहत हम कई सारी एक्टिविटीज करने वाले हैं। तो नो योर डिस्ट्रिक्ट में आज का हमारा पहला प्रोग्राम है गांधरबल क्रोनाइकल्स कैप्चरिंग लाइव्स इंस्पायरिंग हार्ट्स।
तो ये गांधरबल क्रोनाइकल्स है क्या, जिसमें कि हम कैप्चरिंग लाइव्स और इंस्पायरिंग हार्ट्स क्यों लिख रहे हैं इसको। गांधरबल क्रोनाइकल्स में आपके साथ में हर हफ्ते कोई ना कोई एक व्यक्ति आएगा। मैंने एसएसपी साहब से बात की है, हमारे डीजी साहब से बात की है, तो सब लोग आपको आके अपने अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताएंगे। उसके साथ ही ये जो है उन लोगों की लाइफ को हम लोग डिपिक्ट करेंगे और उससे हम लोग ये समझते हैं कि आप लोग इंस्पायर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मोटा मोटा पूरा इसका कार्यक्रम का है। जिससे पहले कि मैं शुरू करूं यूपीएससी के बारे में, तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है इस गांधरबल क्रोनाइकल सीरीज के अंदर। उसके अंदर हम लोग यूपीएससी की बात करेंगे। मैंने वर्ष 2018 के अंदर यूपीएससी क्वालिफाई किया है, और आप में से यहाँ से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने यूपीएससी कभी दिया है? अच्छा, मोस्ट ऑफ देम अंडर ग्रेजुएट, यानी आप लोग अभी तक अपीयर नहीं किए। कितने ऐसे लोग हैं जो यूपीएससी देना चाहते हैं, सिविल सर्विसेज का एग्जाम देना चाहते हैं? तो बाकी लोग क्यों आए? अच्छा, मतलब यूपीएससी के प्रिपरेशन के बारे में तो कहेगा कि तमिलनाडु की एक एनसीईआरटी थी, उस तमिलनाडु की एनसीईआरटी के अंदर जो है ये क्वेश्चन आया था। फिर क्या होगा, अगले साल सब लोग तमिलनाडु की एनसीईआरटी पढ़ने लग जाएंगे। ठीक, फिर अगले साल जो है वो कोई एक क्वेश्चन आएगा इकोनॉमिक्स का, कहेंगे साहब ये इकोनॉमिक सर्वे का है, तो इकोनॉमिक सर्वे दोबारा उठाओ, सब लोग इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने लग गए। तो ये रैट रेस चलती जाती है। तो इसमें हमको पैटर्न समझना होता है एग्जाम का। ठीक है, पैटर्न कैसे समझेंगे, ये हर एग्जाम के लिए अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाओगे, क्योंकि बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा कि हमको वो क्वेश्चन पेपर के अंदर सारे क्वेश्चन सही करके आने हैं। अगर उतना कर लिया तो मैं यहाँ पर आईएएस और सर्वज्ञानी हो गया, वरना अगर नहीं कर पाया तो नहीं हो सकता, भले ही मुझे कितना भी ज्ञान। ठीक, तो अगर हमको अचीव करना है तो हमको वो क्वेश्चन हमको सही करने हैं। तो क्वेश्चन सही करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि बेसिक जितने हमारे वो वाली चीजें हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स, उसके अंदर से हम लोग देखते हैं कि क्या क्या चीजें पूछी गई हैं। लेकिन ये आप कब कर पाओगे, ये तब कर पाओगे जब आपको चीजें पता होंगी, नहीं तो क्वेश्चन पढ़ के लगे ज्योग्राफी का कि हिस्ट्री का। सही बात है ना। तो यानी कि बेसिक हमारे होने चाहिए पहले क्लियर। बेसिक क्लैरिटी के बाद में जितना मैंने आपको बताया कि हमारी एनसीईआरटी, हमारी जो हमने बुक सिलेक्ट की थी वो आपने ये कर लिया, 2 या 3 महीने में आपने ये शेड्यूल बना लिया। उसके बाद आप पेपर देखिए, पेपर के अंदर पैटर्न ढूंढिए कि क्या पैटर्न है। तो जब आप पैटर्न देखोगे, तो जब हम लोगों ने 2 लोगों ने बैठ के एक्सरसाइज की थी, तो हम लोगों ने क्या पाया कि 5 साल के अंदर पहले जितने बेसिक क्वेश्चन आते थे वो आज की डेट में डिक्लाइनिंग ट्रेंड पर है। पहले 50 आते थे, अब 30 आते हैं। पहले जो करंट अफेयर्स के 50 क्वेश्चन आते थे, आज की डेट में 70 हो गए उठ के। तो यानी कि मुझे कहां फोकस करना है, करंट अफेयर, सिंपल मैथ्स। ठीक, तो इस टाइप से ही हमको पता करना है कि हमारा फोकस एरिया क्या होना चाहिए। फिर अब क्या करेंगे, करंट अफेयर्स में भी हम देखेंगे, करंट अफेयर्स भी एक तरीके का होता है ना। तो बेसिक बुक के अंदर भी हम देखेंगे कि पॉलिटी के 2 क्वेश्चन आए, एंशिएंट इंडिया का 1 क्वेश्चन आया, और उसके बाद हमारे हिस्ट्री के 4, इसके ऐसे करके हमने अलग अलग सब्जेक्ट के क्वेश्चन आ गए। इन क्वेश्चन के अंदर जब हम लोगों ने देखा कि यानी कि हमको पता चल गया कि पॉलिटी में हमेशा ही 4 क्वेश्चन आए, तो यानी पॉलिटी में 4 क्वेश्चन इस बार भी आएंगे, तो वी आर श्योर कि हम अगर ये वाली किताबें पढ़ेंगे तो हमारे 4 क्वेश्चन बनने चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली हम इसलिए हम ये पूरी एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन एक्सरसाइज करना जरूरी है। फिर दूसरा पोर्शन मैंने आपको बता दी, करंट अफेयर्स आ जाता है पेपर के अंदर। 30% की हम बात कर चुके हैं कि कैसे हमको उसको पढ़ना है, किताबें सिलेक्ट कैसे करनी है, उसके अंदर से हमको कैसे पढ़ना है। और अगर 1-2 क्वेश्चन बाहर से भी आ गया, जैसे एंशिएंट इंडिया में आपने पढ़ा कुछ, 2 किताबें पढ़ी, लेकिन तीसरी किताब से कोई क्वेश्चन आ गया तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो क्वेश्चन अधिकतर लोगों को नहीं आता होगा। एक किसी को आता होगा जो तमिलनाडु से पढ़ा होगा, जिसने तमिलनाडु में एनसीईआरटी पढ़ी होगी, लेकिन उसका परसेंटेज ओवरऑल इंडिया के टर्म्स में बड़ा कम है। तो यानी कि प्रोबेबिलिटी किस अधिकतर लोगों को आता होगा वो बहुत कम है। ठीक, समझ गए सब लोग? ठीक, फिर हम करंट अफेयर्स पे आते हैं। तो करंट अफेयर्स भी अब कई लोग बोलते हैं साहब हिंदू बहुत अच्छा है, कुछ बोलते हैं इंडियन एक्सप्रेस बहुत अच्छा है। ठीक है, तो सब लोगों के अपने अपने एक मत है, और अल्टीमेटली हमको करना क्या है कि करंट अफेयर्स हमको उतना पढ़ना है जितना मैं एग्जाम के दिन रिप्रोड्यूस कर पाऊंगा। एग्जाम के दिन रिप्रोड्यूस करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। क्यों? क्योंकि जितना आपने पढ़ा है उतना आपको अपनी मेमोरी से खींच के उस दिन उस क्वेश्चन के टाइम पर आपको क्लिक होना चाहिए। बोलते ना, क्लिक अगर नहीं हुआ तो नहीं हो सकता, कुछ कितना ही पढ़ के आ जाओ आप। तो और इसको प्रोसेस को हम लोग, इस प्रोसेस को अगर हमें तेज करना है या हमको पता करना है कि एग्जाम के दिन याद आएगा, उसके लिए हम क्या करते हैं, रिवीजन। सुना है किसी ने? हाँ, तो रिवीजन किया जाता है, यानी पहले हमने जितना पढ़ लिया उसको हम रिवाइज करेंगे।
3 महीने के बाद रिवाइज करेंगे। फिर हम जब एग्जाम नजदीक आ जाएगा फिर हम 10 दिन का शेड्यूल बनाएंगे रिवीजन का, फिर 5 दिन का बनाएंगे, फिर 2 दिन का बनाएंगे। तो यानी कि जो चीजें फिर हम लोग क्या करते थे, जो सबसे ज्यादा भूलने वाली चीज है, एंशिएंट इंडिया के अंदर कुछ समझ नहीं आता, ऐसे ऐसे इतने बड़े बड़े वर्ड होते कुछ पल्ले नहीं पड़ते। तो सबसे ज्यादा जो कठिन शब्द है वो हम लास्ट दिन के दिए, 1-2 दिन पहले उसको पढ़ लेंगे, याद रहा तो रहा, नहीं तो फिर ठीक है, ठीक, क्योंकि किसी को भी नहीं रहेगा, जितना मैं कर सकता उतना मैं कर चुका, है ना। तो यानी कि पेपर भी अगर हम पढ़ेंगे तो हमको उसको रिवाइज करना है। तो पेपर को रिवाइज कैसे करेंगे, एक दिन में तो इतना मोटा आता है, हफ्ते भर का इतना हो जाएगा, महीने भर का ये बढ़ जाएगा, और साल भर का जब अगर हम साल भर से तैयारी कर रहे हैं तो ये पूरी बेंच हमारी बढ़ जाएगी पेपर से, तो रिवाइज नहीं कर पाएंगे। सही बात है, सही बात है कि नहीं है? थोड़ा पार्टिसिपेट करो, ठीक है। तो पूरी टेबल का अगर हम लोग नहीं रिवाइज कर सकते तो स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी कुछ, ये हमारी प्रॉब्लम है। तो अब यार रिवीजन के लिए कुछ तो बनाना पड़ेगा। फिर क्या करते हैं हम लोग, जो स्ट्रेटेजी मैंने अपनाई थी, हो सकता है आप उससे एग्री करो ना करो, ये आप क्यों करो, ठीक है, मैंने स्ट्रेटेजी